Assalamu alaikum and a very warm welcome to each one of you. Good evening, respected guests, honorable speakers, fellow members of the profession, and all our valued participants joining online this evening. It is my privilege to welcome you to this special webinar organized by Northern Regional Committee of the ICAP on a subject that is both timely and deeply relevant to every organization operating in our province, the financial impact of the new Punjab Labour Code 2026. My name is Atif Ahmed, and I have the honor of serving as your Master of Ceremony for this evening session. On behalf of the Northern Regional Committee of the CPD Committee, Northern Regional Committee and the CPD Committee Faisalabad, thank you for taking the time to be with us today. As many of you are aware that Punjab Labour Code 2026 is set to bring one of the most significant transformations in our labour and compliance landscape. In recent memory, it consolidates more than 25 separate labor laws into a single unified framework, touching everything from overtime regulations and wage structures to gratuity, provident fund, employee benefits, and workplace safety. For finance and HR professionals alike, these changes carry real financial consequences and real compliance responsibilities. So this evening session is designed to help you understand, prepare, and stay ahead of these changes with practical, real-world insights from leading experts in the field. If you have any question, please hold on to them. We will have dedicated question and answer segments. So let's formally begin the session by seeking the blessing of Almighty Allah. We will commence with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah. Having begun with the blessing of Almighty Allah, let us now move to the formal opening of our session. It is my honor to invite our distinguished guest to deliver the opening remarks. Our speaker is Mr. Ranil Peter, Chairman of the Northern Regional Committee of ICAP and a partner at KPMG. Mr. Ranil Peter is a fellow member of ICAP and a certified internal auditor with over 2 decades of professional experience across Pakistan and the Middle East. He currently serves as partner tax KPMG Tasir and Hadi and Co. He has previously served on the Northern Region Committee of ICAP during 2021 and 25 terms and has been an active member of several ICAP committees for the past 8 years. Beyond the profession, he serves as an advisor to the boards of 4 non-profit organizations as well as an advisor to the Federal Tax Ombudsman. We are honored to have his leadership and guidance to open today's proceeding. Please join me in welcoming Mr. Anil Peter for the opening remarks. थैंक यू सो मच आतिफ. अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन. सबसे पहले तो मेरा प्रॉमिस है कि मेरी जो छोटी सी स्पीच है वो मेरे इंट्रोडक्शन से छोटी होगी. दूसरा ये है कि आप सबको मोस्ट वेलकम. आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज डिस्कस होने जा रही हैं इसमें. लुकिंग एट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द रजिस्ट्रेशंस दैट वी हैव, it seems कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है because we have about I think more than 400 registrations for this event. मैं सिर्फ थैंक यू करना चाहूँगा अहमद सुलेमान का for organizing and leading the organization of this webinar. और I think हमारे साथ जो ज़िशान सुबहान साहब हैं और एडवोकेट शहजाद चौधरी साहब हैं, उनके लिए जिन्होंने टाइम निकाला और वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे to share their knowledge and expertise with you all. So I just hope that you all get the knowledge and the benefit that you are looking for. हमारी कोशिश है और रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज कर सकें आप सबके लिए. उसमें फ्री वेबिनार्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ताकि जो फ्री और ऑनलाइन इवेंट्स हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट द टाइम. एंड नाउ ओवर टू यू, बैक टू यू आतिफ, so that
you can commence further. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Anil Peter, for those insightful and encouraging opening remarks and for setting the perfect tone for our session this evening. We now move to the keynote address of this evening's webinar. For this, I have the privilege of inviting a highly respected leader of our profession. Our keynote speaker is Mr. Zishan Ejaz, Council Member of ICAP and Chairman of the Fiscal Laws and Economic Advisory Committee. Mr. Ejaz is a fellow member of ICAP with over 20 years of experience in taxation, corporate advisory, and professional practice. He has been a tax partner at KPMG since 2009 and serves as Head of Office Management for KPMG Lahore, overseeing key operational and strategic functions. He specializes in tax compliance, advisory, planning, and regulatory approvals from BUI, SBP, and SECP. He has represented KPMG Pakistan at international forums and is serving as an ICAP Council member for the 2022-26 term, actively contributing to multiple ICAP committees and national bodies, including RRMC and the FBR EDR committee. It is my pleasure to invite Mr. Zishan Ejaz to deliver the keynote address. Sir, we look forward to your valuable insights. Thank you. Thank you very much, Atif. I mean, seriously, I would like to start with the same comment जो आतिफ ने अपने opening remarks के बारे में कहा है. Yes, I'm a bit overwhelmed also by the introduction given by you. Coming back to the topic, seriously speaking, this is something I believe it is my second term in the council, but I don't remember whether the NRC or even the council has conducted any such session on this topic in the last 4 or 5 years. So, but if you go through the overall daily operations and the activities through the firms, I believe a lot of these activities are there and part and parcel of our services, basically. And we generally came across questions from our clients, our friends and colleagues, which are related to this particular topic. And in most of the cases, we either refer to the lawyers for these help, or we generally feel to go through those documents ourselves, which is feeling on the side that this is not the expert area we specialize in. But frankly speaking, Anand, this is something very good. Ahmed Salman, excellent initiative. And Zishan Saab and Shahzad Saab, I myself look forward to take this forward. And I believe I've gone through the flyer also. You will be touching upon the areas which are very, very important, especially over the last few years. New regulations coming in, and there are a lot of, I would say, restrictions by the different regulators or the compliance requirements by the regulators. This is something becoming very important part of our commercial operations, and not only for the corporate angle, but also from the consultant side, from the firm side. I believe this topic as a whole should add value, and that I personally believe this is one of the major topic. I would love to get as much as knowledge in that, and I believe all of our audience would get a lot of benefit on that. Once again, thank you very much, NRC, Anil, your whole team, and the ICAP for arranging this, and especially the speakers who have volunteered to contribute to our knowledge for that. Once again, thank you very much. Thank you very much, sir, for that thought-provoking keynote address. Your perspective on the broader implication of these reforms gives us an excellent foundation as we move into the heart of today's sessions. We now arrive at the core of our session this evening, the detailed technical discussion on the financial and compliance implications of the new Punjab Labour Code 2026. To guide us through this, we are fortunate to have two distinguished industry experts who bring deep practical knowledge of both the legal and the HR dimension of these reforms. Our first expert is Mr. Zishan Subhan Bandesha, founder and president of PIPD. Mr. Bandesha is a
highly experienced HR trainer with over 250 trainings delivered across Pakistan. He specializes in employment and labor laws, particularly the Punjab Labor Code, and advises organizations on compliance, industrial relations, and statutory frameworks such as EOBI and PESI, PESSI. Joining him is Advocate Shahzad Chaudhary, HR and employment attorney known for his expertise in aligning legal compliance with practical HR strategy. His work focuses on transforming compliance system with organizations, particularly in light of Punjab Labour Code 2026 reforms. Together, they will walk us through the key areas that matter most: overtime and working hour regulations, salary structures, wage reductions, gratuity and employee benefits, provident fund and wage definitions, terminations and severance pay, intern regulations, health and safety compliance, daycare obligations, and the expanded coverage for women's safety. Please join in welcoming our industry experts, Mr. Zishan Bandesha and Advocate Shahzad Chaudhary. Thank you. Thank you so much, Ji. Jazakallah khair. Thank you so much for the introduction and for inviting us. मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आपको आ रही है और बाकी चीज़ें क्लियर हैं तो हम स्टार्ट करें सेशन को. Yes, audible. हमारा आज का सेशन है जी पंजाब लेबर कोड 2026 पे. हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे थोड़ा क्विकली चीज़ों को लेके चलना होगा. सेशन की तरफ आते हैं. आज के हमारे सेशन का टॉपिक है पंजाब लेबर कोड 2026 और पंजाब लेबर कोड 2026 के सब टॉपिक फाइनेंशियल इम्पैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे. मेरे साथ एडवोकेट शहजाद अकरम चौधरी हैं. इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है. हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो उन्होंने हमें टाइम दिया आज के सेशन के लिए. माई सेल्फ ज़ीशान सुबान बंदेशा. आई एम जस्ट एन HR तालिब इल्म विद एन ओवर a decade of experience in strategic people management, and I'm also serving as a president PAPD, जहाँ पे हमने कुछ 300 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स अब तक कंडक्ट कर ली हैं. और we are the only institute who's working across Pakistan, in all provinces of Pakistan. We are working for the development of HR in Pakistan, and ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी दोनों ऑडियंस को कनेक्ट करता है, HR प्रोफेशनल्स को भी और उसके साथ साथ हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी, जो कि आज आप लोगों की ज़रूरत में हमें मिले. इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं साहब का अपना काम है, क्योंकि उनकी सारी एफर्ट है कि उन्होंने इसको मेक श्योर किया कि हम इसको डिलीवर कर पाएँ. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ, और मेरा ये मानना है कि इस दुआ के बाद एक ऐसी बरकत इंशाल्लाह आएगी कि थोड़ी देर बाद ही, अगले 3 मिनट बाद मैक्सिमम, मैं आपको एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट दिखाऊंगा. उस चेकलिस्ट में वो सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं. और जब आज का आपका ये सेशन कंप्लीट होगा और आप वो चेकलिस्ट आपने खुद मार्क करनी है, अपने पास रखनी है, अपने पास ही रखनी है, हमें नहीं देनी वो, और वो चेकलिस्ट आप तक आ जाएगी. तो इंशाल्लाह हम 100% श्योर कि ऑल दो ऑनलाइन सेशंस का जो रेशो है वो 30-20% रहता है लर्निंग का, बट आज के इस सेशन का रेशो 80% लर्निंग का होगा. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप अपने हाथों से मार्क करेंगे रिपोर्ट कि मुझे ये भी समझ आ गया और ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. सो दुआ पढ़ते हैं. ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जो नफ़ा ना दे, और उस दिल से जो ना डरे, और उस नफ्स से जो सैर ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना की जाए. आमीन या रब्बुल आलमीन. हमारे सेशन से पहले छोटा सा PIPD का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है. PIPD इज़ अ जीरो ट्यूशन फॉर वर्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहा है. ऑलरेडी हम कुछ 11,000 कंपनी से कनेक्टेड हैं. और आज का सेशन डोंट अंडर एस्टिमेट दिस लॉ, पंजाब लेबर कोड 2026. ये अपने आप में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें इस आज के इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट क्यों नहीं करना. पंजाब लेबर कोड से पहले भी बहुत सारे लॉ आए और चले गए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कुछ माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते. बट इस लॉ में ऐसा क्या है, ये अपने साथ क्या ऐसा लेके आया है जो 100% मेक श्योर करेगा कि इसकी कंप्लायंस जो है वो पूरी हो. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस पूरी नहीं करेगी तो देन उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो
चार नए डेजिग्नेशन आ गए हैं जी पंजाब लेबर कोड 2026 में। 10 फरवरी 2026 को गवर्नर ऑफ पंजाब ने इसको गजट किया और ये पंजाब के एक एक इंच पे ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके बारे में हम इन डेप्थ आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा एक सब टॉपिक चल रहा है, वो ये है कि इसको अंडर एस्टिमेट क्यों नहीं करना। ये चार डेजिग्नेशन हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये सारी पीपीटी, सारा मटेरियल, सारा चेकलिस्ट, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। ये चार डेजिग्नेशन है। द फर्स्ट वन इज चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर के पास थोड़े से उन्होंने इख्तियारात दिए हैं, और उनके पास इख्तियारात ये हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करती और रिपीटेड वायलेशन करती हैं, चीफ इंस्पेक्टर की तरफ से उनको नोटिस आते हैं, बट अगर फिर भी वो उस कंप्लायंस को पूरा नहीं करते जो ये लॉ कहता है, जो पंजाब लेबर कोड 2026 कहता है, तो द रिजल्ट विल बी कि वो आराम से उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस सस्पेंड कर देगा। एंड द सेकंड डेजिग्नेशन इज मिनिमम वेजेस इंस्पेक्टर। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट इसके बाद सब थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं जो इस लॉ के साथ उसको ज़्यादा इन्फोर्समेंट की तरफ ले जाएंगी कि वो ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो पंजाब के जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम वेजेस इंस्पेक्टर है। और डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में डिफरेंट एरियाज हैं, बट वो अपने एक डेजिग्नेशन की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं पूरे पंजाब की, कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकता है और मिनिमम वेजेस की कंप्लायंसेस को चेक कर सकता है। कंपनसेशन कमिश्नर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता था कि फाइनल सेटलमेंट का जब टाइम आता था किसी ऐसे एम्प्लॉय की जिसकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय की फाइनल सेटलमेंट को दबा जाती थी। या पंजाब में ये आम प्रैक्टिस है, पंजाब के पूरे पाकिस्तान में ये पाया जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। उसमें हमारी कुछ गलतियां बताइयाँ हैं, लेकिन अब उसको भी मेक श्योर करने के लिए कि हर उस डिसीज पर्सन की फैमिली को उसके कंप्लीट बेनिफिट एंड बंक्स मिल रहे हैं या नहीं, इसके लिए प्रॉपर डेजिग्नेशन है, वो है कंपनसेशन कमिश्नर। और जब भी किसी एम्प्लॉय की खुदा न खास्ता डेथ होगी, तो उसकी जो पूरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है 100% वो कंपनसेशन कमिश्नर को सबमिट होगी। और अगर वो सबमिट नहीं होगी तो दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट की मदीयत में आपके ऊपर केस करेंगे कंपनसेशन कमिश्नर। सो लीगली उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस, ये एक छोटे से चार लफ्जों का मजमुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अपने आप में बहुत सारी क्या मत छुपी। अ, अपने लोगों ने डाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपको डाइवर्सिटी समझ में आती होगी। डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग, एक सेम डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय को राइट मिलना, जेंडर की वजह से उसके डिस्क्रिमिनेशन होना, सेक्ट की वजह से, कास्ट, क्रीड, रंग, नस्ल, किसी भी चीज़ की वजह से, ये उन तमाम चीज़ों को टैकल करेगा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस। और ये देखने में शायद इस वक्त सबसे कम पावरफुल आपको यहाँ पे लगे, बट इस ये जो क़यामत ढाने वाला है आगे आने वाले दिनों में एचआर प्रोफेशनल्स के लिए और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप हर तरह से कंप्लायंस को पूरा करें और हर तरह से आप अपने आप को सेफ गार्ड करें। ये चार डेजिग्नेशंस ये मेक श्योर करेंगे, ये चार सब डिपार्टमेंट्स, ये डेजिग्नेशन, ये ओहदे, ये मेक श्योर करते हैं कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पंजाब लेबर कोड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आने वाला है उसे आप भाग ना पाए। सो अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे ज़रा चैट में बताइएगा, और अगर किसी की कोई क्यूरी है तो देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट टू। सो समन इज सेइंग क्लियर्ड। जिन जिन को क्लियर है जी ज़रा मुझे बताइएगा कि क्लियर, सिर्फ जस्ट टाइप क्लियर in the comment section so that I can move further. Let's make it interactive, everyone. Perfect. I'm getting some text. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. So let's move to the next one. So हमारे पास नेक्स्ट है दिस वन। स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा।
लेट मी चेक, यस, ओके फाइन, परफेक्ट, थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे पंजाब लेबर कोड 2026 इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे है, कौन से डेजिग्नेशन इसमें कवर होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें कवर होती हैं, ये सारी चीज़ें। पंजाब लेबर कोड 2026 इम्प्लीमेंट हुआ 10 फरवरी 2026 को। ये गजेटेड हो चुका है, इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, लेकिन इसमें एक छोटा सा अभी लूप होल है, और वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लेबर ऑफिस और इससे रेलेवेंट जितनी ऑफिसेज हैं उनको गिरफ्त करने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है सीएम ऑफिस से। अब जैसे ही सीएम ऑफिस से उनको इन रिटर्न अप्रूवल मिल जाएगी, वो एज पर दिस लॉ तमाम इंडस्ट्रीज को उसकी कंप्लायंसेस को वो चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये लॉ इम्प्लीमेंटेड है? यस, इट इज इम्प्लीमेंटेड। क्या इसके अगेंस्ट ऑडिट हो सकता है एज ऑफ नाउ? नहीं, क्योंकि सीएम की इन रिटर्न इजाजत उनके पास नहीं है, डिपार्टमेंट के पास। तो ये एक तो क्यूरी, वो जिस दिन आ गई उसी दिन इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। सो अब आते हैं पंजाब लेबर कोड 2026 के टॉपिक पे। 10 फरवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हुआ। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, पूरे पंजाब के ईच एंड एवरी सिंगल इंच के ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंटेड है। इसके अंदर पाई जाने वाली एक एक इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री, वो सारी की सारी इसमें कवर्ड है। कोई एक भी इंडस्ट्री जो आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी इसमें कवर्ड है। जो आपको शायद लगता हो कि ये नहीं कवर हो गया, हो सकता है राइडर ना कवर हो सकता है डिलीवरी बॉय ना कवर हो सकता है कि घर में काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस के पेरोल पे वर्कर होते हैं, क्या वो कवर्ड होंगे होंगे क्या इसकी, क्या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो शॉप्स कवर्ड हो रही थी, क्या वो सारी की सारी कवर्ड होंगी? क्या मॉल कवर होंगे? सब कुछ कवर्ड है। क्या बैंक्स कवर्ड होंगे? यस, इट इज कवर्ड। ठीक है। क्या इंश्योरेंस कंपनीज कवर्ड होंगी? यस, इट इज कवर्ड। क्या ये सारी की सारी सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड होंगी? यस, दे आर कवर्ड। सो ईच एंड एवरी सिंगल टाइप ऑफ कंपनी जो पंजाब की जोरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद है, उन तमाम पे ये लॉ लगता है, मां सवाए कुछ पे। और वो क्या है? पहली है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके ऊपर ये लॉ नहीं लगता। ऐसी ऐसे अदारे जिनका पुलिस के ऊपर ये नहीं लॉ लगता। ठीक है। शहजाद साहब, वो मुझे वो लॉ भूल रहा है, मुझे पता, प्लीज बताइएगा वो कौन सा था? सर्विस, सर्विस अ, वाला। जी जी, वो जो हमारे बुनियादी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन पे सिविल सर्वेंट, यस। पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एक्ट पीडा जो है वो लगता है, या उनके यस, ईएनडी रूल्स होते हैं अपने, उनको उनके तहत जो यस, डील किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। सिविल जी। सर्वेंट एक्ट जिन पे लगता है उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। अब आ जाते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लॉय कौन से हैं? ठीक है। सो इम्प्लॉय वो हैं जो भी आप सोच सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, जो कि लॉ के अंदर लिखा हुआ एक रिटन एक पैराग्राफ है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। लॉ कहता है स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क। स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क, जो भी किसी भी किस्म का काम करने वाला एम्प्लॉय है वो सारे इसमें कवर्ड है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसपे ये लॉ नहीं लगता। तो हमने जोरिस्टिक्शन समझ ली, हमने इंडस्ट्री समझ ली, हमने एम्प्लॉय समझ लिए। ये हमारा पहला पोर्शन कवर हो गया। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के रेलिवेंट कुछ चीजें मिलती हैं वो है मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन, ओवर टाइम, पेमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओवर टाइम और हॉलीडे का, और इक्वल रेमुनरेशन फॉर इक्वल वर्क। ये 6 सेक्शंस को हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। ये सारे का सारा मटेरियल जो भी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, ये सब का सब आप लोगों को मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। मिनिमम वेजेस रेट, हर सूबा अपना मिनिमम वेजेस रेट अलग से डिसाइड करेगा, जो
मिनिमम वेजेस रेट सूबा डिसाइड कर लेगा, प्रोविंस डिसाइड करेगा, वही आप इंप्लीमेंट करेंगे। ये लॉ ये कहता है, ये फिक्स नहीं करता मिनिमम वेजेस को। ये नहीं कहता कि आज के बाद सारी जिंदगी 40,000 मिनिमम वेजेस रहेगी। लॉ ये कहता है कि मिनिमम वेजेस जिस साल में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे और लेके चलेंगे। लेकिन ये पूरे का पूरा लॉ इंटैक्ट है फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं टाइमली पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन एंड वेजेस। टाइमली पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन और वेजेस को उसने करने की कोशिश की है, थोड़ा उस पर अमल दरामद करने का कहा है कि आप इसको टाइमली करें, लेकिन इसके ऊपर कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई। और यकीनन इसका जब सेकंड रिवीजन आएगा तो उसमें वो बाउंड्री भी सेट हो जाएगी कि वो 7 डेज में करना है या 10 डेज में करना है या 2 डेज में करना है। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट का तो 2 डेज में है, लेकिन बाकी किसी का उसने अभी टाइमली पेमेंट को सिर्फ कहा है, मे का वर्ड यूज किया है, इन्फोर्स नहीं किया। लेकिन जो इसकी जैसे ही सेकंड रिवीजन आनी है उसने इसको भी बाउंड कर देना है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो 1 महीना काम करवाने के बाद आगे 1 महीना मजीद गुजारने के बाद सैलरी दे रही, तो उसको वो डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टाइम पे बात कर लेते हैं। ओवर टाइम, अब आपके पास दो तरह का ओवर टाइम है। पहले तो हम ओवर टाइम वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं। वर्किंग आवर जब आपको समझ आ जाएंगे तो देन मैं आपको ओवर टाइम की कैलकुलेशन समझाऊंगा। वर्किंग आवर को भी इस लॉ ने लिमिट कर दिया है। ये लॉ ये कहता है कि आप एक एम्प्लॉय से उसकी रेस्ट टाइम के अलावा 8 घंटे का वर्किंग आवर ले सकते हैं एक दिन में, और आपने उसको वीक में एक रेस्ट देनी है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 रेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से 10 घंटे पर डे काम ले सकते हैं, लेकिन वीक के टोटल वर्किंग आवर 48 घंटे होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि 4 दिन आप 10-10 घंटे वर्किंग लेंगे और 5वें दिन आप 8 घंटे काम लेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप 48 घंटे की आपकी लिमिट है किसी भी एम्प्लॉय से काम लेने की। एक हफ्ते में जो वर्किंग आवर्स उसने लिमिट कर दिए हैं वो है 48। पर डे में जो उसने वर्किंग आवर लिमिट किए हैं, पहले किए हैं 8 उन कंपनीज के लिए जिनका हफ्ते में एक सैटरडे या एक संडे कोई भी उसको वीकेंड पे एक रेस्ट मिलती हो। जिनको 2 रेस्ट मिलती हैं वो 10 घंटे काम ले सकते हैं, लेकिन 4 दिन 10 घंटे लेंगे, 5वें दिन वो 8 घंटे लेंगे। 48 घंटे से ज्यादा वीकली काम नहीं ले सकते। अब 48 घंटे आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ओवर टाइम इससे ऊपर है। अब ऊपर वाला जो ओवर टाइम है उसको भी उसने लिमिटाइज कर दिया है। लॉ ये कह रहा है कि आप 2 घंटे सिर्फ काम ले सकते हैं पर डे ओवर टाइम पे, और वो भी यू मे रिक्वेस्ट, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यू मे रिक्वेस्ट एन एम्प्लॉय टू वर्क ऑन ओवर टाइम। आप अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हमें आपके ओवर टाइम की जरूरत है, आप 2 घंटे आज काम कर लीजिए। 2 घंटे से ज्यादा आप हरगिज उससे आप ओवर टाइम नहीं लगवाएंगे। ठीक है जी। अब 2 घंटे रोजाना तो उसने लिमिट कर दिया, अब इससे आगे क्या? 2 घंटे रोजाना के बाद की जो अगली लिमिट है वो है 8 घंटे पर वीक की। वो लिमिट क्या है जी? 8 घंटे पर वीक। मतलब आप हफ्ते में 2 घंटे रोजाना ओवरटाइम किसी वर्कर से लगवा सकते हैं रिक्वेस्ट करके, बट हफ्ते में टोटल जो उसका ओवर टाइम है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको दोनों को क्लब कर लें। जो वर्किंग आवर्स थे वो 48 हैं, और ओवर टाइम मैक्सिमम आप लगवा सकते हैं 8 घंटे। 8 और 48 को जमा करेंगे तो जो टोटल आवर, नंबर ऑफ आवर्स आप काम ले सकते हैं किसी एम्प्लॉय से, वो 56 आवर्स है। इससे ज्यादा आप लीगली अब किसी भी एम्प्लॉय से काम नहीं ले सकते। ओवर टाइम भी मैंने कवर कर दिया, मैंने डेली वर्किंग आवर्स भी कवर कर दिए। अब ओवर टाइम की पेमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ओवर टाइम की पेमेंट के ऊपर जो भी आप नॉर्मल डेज के अंदर किसी भी एम्प्लॉय से ओवर टाइम लगवाएंगे, आप हर 1 घंटे काम करने पर उसको उसकी ग्रोस सैलरी के हिसाब से 2 घंटे का जो है ना ओवर टाइम पे करेंगे। और अगर आप 2 घंटे काम करवा रहे हैं तो आप 4 घंटे की सैलरी पे करेंगे। आप अगर 6 घंटे काम करवा रहे हैं तो आप 12 घंटे की सैलरी पे करेंगे। इसको कहा जाता है डबल ओवर टाइम। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल वर्किंग डेज के ऊपर ओवर टाइम।
एक आ जाता है गजटेड डे के ऊपर ओवर टाइम। गजटेड हॉलीडेज, हर वो छुट्टी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है और अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंटेड है, और अब आपने उसके अगेंस्ट अगर काम लेना है अपने एम्प्लॉय से, तो हर 1 घंटा काम करने पे उसको 3 घंटे के पैसे मिलेंगे। इसको कहा जाता है ट्रिपल ओवर टाइम। ठीक है जी, तो मैंने ओवर टाइम की कैलकुलेशन, मैंने वर्किंग डेज की कैलकुलेशन, वर्किंग आवर की कैलकुलेशन, और मैंने आपको इन दोनों की रेमुनरेशन भी समझा दी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 4 नंबर जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन पे, सेक्शन 185 लॉ ये कहता है कि आप इमरजेंसी के दौरान किसी भी एम्प्लॉय से ओवर टाइम लगवा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई हादसा हो गया है, कोई नेचुरल इंसिडेंट हो गया है, कोई डिजास्टर हो गया है, तो अब आपके एम्प्लॉय की, आप लोगों को एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो आए और आपके वो जो मेस हो गया है, तानाकास्ता बिल्डिंग गिर गई है, तो उसको वो कवर करेंगे इसी तरह से। उस दौरान आप अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम लगवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। लेकिन अगेन दो चीजें, पहले नंबर पे आप फौरी उस इंसिडेंट को लेबर ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे कि हमारे यहाँ ये इंसिडेंट हो गया है। दूसरे नंबर पे आप एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओवर टाइम पे काम करें, और जितनी की वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही आप ओवर टाइम उससे लगवा सकते हैं। उस सिलसिले में इमरजेंसी के दौरान ये जो सीलिंग वाला एलिमेंट था, 8 घंटे हफ्ते वाला, वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आप उसकी देंगे। पेमेंट आप उसकी डबल ही पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान आप जो ओवर टाइम एम्प्लॉय से लगाएं उसको सिंगल पे करें, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वर्किंग हॉलीडे के ऊपर हमने बात की। अब आ जाते हैं छठा, इक्वल रेमुनरेशन फॉर इक्वल वर्क। इसके ऊपर इन डिटेल मेरी प्रेजेंटेशन है आगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप एक डेजिग्नेशन के ऊपर दो एम्प्लॉय को हायर करके उनकी सैलरी को आप डिफरेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हेल्पर की सैलरी 40,000 है, दूसरे की 44,000 है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक असिस्टेंट मैनेजर पे रोल 40,000 रुपए की बजाय वो 80,000 रुपये, और दूसरा असिस्टेंट मैनेजर पे रोल जो है वो आपने रखा हुआ है 90,000। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैनेजर HR आपने 4 लाख पे रखा हुआ और एक मैनेजर HR 4,20,000 पे रखा हुआ। ये छोटा सा भी जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। इक्वल रेमुनरेशन फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अब यहां पे आपके खिलाफ जो आपका एम्प्लॉय जब लेबर कोर्ट में जाएगा, लेबर ऑफिस जाएगा, तो जो आपको वो कंप्लेन करेगा आपके खिलाफ, तो वो ये नहीं करेगा कि मेरी ये सैलरी कम दे रहे हैं मुझे। सैलरी उन उस आपके एम्प्लॉय का वकील एज ए एविडेंस बाद में यूज करेगा। वो इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन डिस्क्रिमिनेशन, सेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे पहले लॉ बन वो पेश करेगा कि देखें मेरा जो क्लाइंट है वो मेल था, जो दूसरा पर्सन है वो फीमेल है। अगर दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल है तो वो कह देगा जी ये सुन्नी है, वो शिया है। उससे भी आगे निकलेगा तो वो कह देगा जी इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इससे है और उसके बॉस की एफिलिएशन इससे है। ये सारा कुछ लॉ ने एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसमें लिखा है। ठीक है, कि ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, आप लोगों ने इससे बचना है। इससे बचने का क्या तरीका है? KPIs। इससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंसेस KPIs को इम्प्लीमेंट करें। आप हर एम्प्लॉय की रिपोर्ट बनाएं, उन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट आपके सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स उसके एवेलुएट हो रहे हो, मिल रहे हो, मैनेज हो रहे हो। और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका एम्प्लॉय आपको चैलेंज भी करेगा, तो आप उसको सेफगार्ड कर सकेंगे अपने एम्प्लॉयर को। अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ये हमारा मॉड्यूल 1 हमने यहाँ तक क्लियर किया। होप सो कि क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम जो है वो कम है, 6:35 हो गए हैं, हमने इसको जल्दी वाइंड अप करना है। ठीक है जी, अगले आधे घंटे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। एनुअल लीव विद पे, इसका क्या मतलब है? फिर अनवेल्ड एनुअल लीव्स के बारे में लॉ क्या कहता है? मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में क्या कहता है? पैटर्निटी के बारे में क्या कहता है? सिक लीव्स क्या है? कैजुअल लीव्स क्या है? क्वारंटाइन लीव क्या है? इद्दत लीव्स क्या है? अब हम इसकी कैलकुलेशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन
और ये कब देनी है और कब नहीं मिलनी, अब हम वो समझेंगे। पिछले में हमने जो सेक्शन कवर किया वो हो गया, अब अगले पार्ट पे आते हैं। एनुअल लीव को लॉ ने 14 से बढ़ा के 18 कर दिया है कि आप अपने एम्प्लॉय को 18 एनुअल लीव देंगे। लेकिन 18 एनुअल लीव देते ही साथ ही लॉ ने एक और चीज कर दी है जो शायद आप लोगों के साथ पहले नहीं हो रही थी, और वो ये है कि एनुअल लीव्स अगर कोई भी एम्प्लॉयर पे नहीं करना चाहता, लमसम, लमसम पे का क्या मतलब होता है, लीव इनकैशमेंट की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहता है जी कि मुझे साथ मेरी जो लीव्स है ना एनुअल लीव्स वो पे कर दें, इनकैशमेंट दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। इस लॉ ने वो चीजें खत्म कर दी हैं, और सारी की सारी जो लीव इनकैशमेंट है एनुअल लीव की, उसको जाके उसने कनेक्ट कर दिया फाइनल सेटलमेंट पे। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा उस वक्त उसको इजाजत है, और आप पे ऑर्गेनाइजेशन पे ये फर्ज है कि उसकी जितनी एनुअल लीव्स बाकी हैं बैलेंस में, उन तमाम एनुअल लीव्स का वो पे करेंगे, उसकी ग्रोस रेमुनरेशन के पर डे रेमुनरेशन निकाल के उसके हिसाब से वो पे करेंगे। एनुअल लीव 14 से 18 हो गई। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस खत्म कर दी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एज ए बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को देना चाहती है दे सकती है, बट लीव इनकैशमेंट को कनेक्ट कर दिया, एनुअल लीव इनकैशमेंट को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, फाइनल सेटलमेंट के साथ। एनुअल लीव का हमारा पोर्शन कवर हो गया। अब आ जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट पे। मैटरनिटी बेनिफिट क्या किया गया कि एक जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको 14 दिन की छुट्टी, 14 वीक की छुट्टी इंटाइटल कर दी गई। ठीक है जी, 14 वीक्स उसको छुट्टी इंटाइटल कर दी गई। 6 हफ्ते वो डिलीवरी से पहले छुट्टी कर सकती है, और पोस्ट डिलीवरी वो 8 हफ्ते की छुट्टी कर सकती है, और ग्रोस पे के हिसाब से ये पे होगी। और इस छुट्टी के दौरान आप अपनी फीमेल एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकते, रिजाइन नहीं ले सकते, उसको सर्विस से नहीं निकाल सकते। लेकिन अब ये मैंने मैटरनिटी का आपको लीव बैलेंस बता दिया, उसकी स्लैब बता दी, पहले कितनी करनी है बाद में कितनी करनी है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया उसके दरमियान आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब इसका एक और पॉइंट है, आपको याद है मैंने कहा था कंपनसेशन कमिश्नर, वो यहां पे कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, लॉ ये कहता है कि अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय की खुदा ना खास्ता डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाए, डिलीवरी वाले डे पे डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाए, तो उस फीमेल की जो अगले 8 हफ्तों की छुट्टियां थी उसका आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन करेंगे, उसकी फाइनल सेटलमेंट में बनाएंगे, और उन 8 छुट्टियों के पैसे फाइनल सेटलमेंट में ऐड करके पे करेंगे, सबमिट करेंगे कंपनसेशन कमिश्नर को, देन वो उसके लीगल हेड्स को देगा। तो मैटरनिटी के अंदर ये वाला एक पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है। अब आ जाते हैं पैटर्निटी के ऊपर। पैटर्निटी में 7 छुट्टियां जो है वो मिलेंगी फादर को उसके बच्चे की बर्थ पे। लेकिन इसमें अब आगे 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि ये वो अपनी सर्विस में अपने 2 जिंदा बच्चों के लिए ही अवेल कर सकता है। दूसरा क्या है, अब जिंदा बच्चों से क्या मुराद है, अगर उसका पहला बच्चा पैदा हुआ है वो जिंदा है, दूसरा बच्चा पैदा हुआ वो जिंदा है, तो उसको दूसरे पे भी छुट्टियां मिल गई। तीसरा बच्चा पैदा हुआ और पहले 2 जिंदा हैं, तो अब उसको पैटर्निटी लीव्स नहीं मिलेंगी। लेकिन खुदा ना खास्ता तीसरा बच्चा पैदा हुआ और उन पहले 2 में से कोई किसी की डेथ हो गई होगी, तो तीसरा बच्चा उसका एक्चुअल में दूसरा कैलकुलेट होगा, दूसरा माना जाएगा, और उस सिनेरियो में वो उसको अगेन 7 पैटर्निटी लीव्स दी जाएंगी। अब आ जाते हैं सिक लीव पे। सिक लीव 8 है और कैजुअल लीव 10 है। लेकिन सिक लीव जो है वो, उसमें भी अब एक लॉ है, और वो लॉ ये है कि अगर आपके एम्प्लॉय की तबीयत खराब होती है और वो 2 छुट्टियां करता है, तो आप उससे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। लेकिन तीसरी छुट्टी और तीसरी से ऑनवर्ड एक ही बार में, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक महीने उसने एक की, अगले महीने एक की, और तीसरे महीने में वो जाके एक करता है उसका, तो आप उसे कहें मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं। एक ही बार में, एक ही सीक्वेंस में 3rd डे से ऑनवर्ड अगर उसको मेडिकल लीव्स चाहिए, तो वो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करेगा किसी लीगल डॉक्टर के का, जो उसको इन रिटन जिसने प्रिस्क्राइब किया हो कि इसको मेडिकल रेस्ट चाहिए। अगर उसके पास वो नहीं है,
तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप उसको सिक लीव ना दें। कैजुअल लीव 10 है, और कैजुअल लीव और सिक लीव दोनों किसी भी सूरत एनुअल लीव के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब आते हैं क्वारंटाइन लीव। ऐसे किसी कंडीशन में जहां पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे कि इस शख्स को क्वारंटाइन कर दिया जाए, डेंगू की सूरत में, कोरोना की सूरत में, किसी भी और डिसीज की सूरत में, तो 14 दिन सेक्शन 194 कहता है कि 14 दिन उस शख्स को आप क्वारंटाइन लीव देंगे, और वो 14 दिन विद पे होगी, और ये पिछले किसी भी लीव बैलेंस से वो डिडक्ट नहीं होगी। देन आता है इद्दत लीव। सेक्शन 196 कहता है कि ऐसे फीमेल एम्प्लॉय जिसके हस्बैंड की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए, तो उसको आप लोग इद्दत लीव देंगे, फुल पे होगी 130 डेज की। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे अगले मॉड्यूल पे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टर्मिनेशन, वो है रिजाइन, वो है प्रोविडेंट फंड, वो है ग्रेजुएटी। इन सारी चीजों को वो कनेक्ट करता है। लॉ ये कहता है कि किसी भी सूरत कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी नेचर का एम्प्लॉय हो, आपका उसके साथ जो एग्रीमेंट है वो मैक्सिमम 30 डेज का है नोटिस। वो छोड़ के जाना चाहता है, वो 30 डेज का नोटिस देगा। आप उसको निकालना चाहते हैं, 30 डेज का नोटिस देंगे। आप 2 महीने का नोटिस, 3 महीने का नोटिस, 4 महीने का नोटिस एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं जो शायद मैंने स्टार्ट में आपको क्लैरिफाई नहीं किया, इस लॉ की लिखी हुई लाइन है कि इस लॉ में मौजूद किसी एक भी लाइन को, एलिमेंट को, बेनिफिट को आप किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट से कैंसिल नहीं कर सकते। आप कहीं से भी पार्टनर, आप क्या होता है, एफिडेविट साइन करवा लें एम्प्लॉय से, आप दोनों कोई एग्रीमेंट कर लें, कोई स्टाम्प कर लें, कोई रिटर्न, कोई लेटर हेड पे कर लें, वो जितनी भी आपकी शिक होंगी जो उसके ऊपर एग्रीमेंट पे लिखी होंगी, वो इस लॉ को अबे करती हों, इस लाइन की एक, इस लॉ की एक भी लाइन को कैंसिल नहीं कर सकते आप। 30 डे नोटिस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरी चीज। दोनों साइड से 30 डे नोटिस है। दूसरी चीज, अगर किसी भी सूरत में आपने 30 डे नोटिस दे दिया या एम्प्लॉय ने नोटिस दे दिया, दोनों सूरत में एम्प्लॉय को हफ्ते में एक छुट्टी, उसकी वीकली रेस्ट के अलावा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डे डिसाइड करेंगे कि हफ्ते में किस दिन वो छुट्टी कर। जो डेट डे आप लोग डिसाइड करेंगे, उस डेट और डे पे वो जाएगा, नौकरी अपने लिए तलाश करेगा, जॉब तलाश करेगा, या जहां पे तलाश कर लिया वो वहां जाके काम करने की इजाजत होगी उसको। वो उसकी मर्जी है वो उस दिन क्या करता है। लेकिन आप 1 पेड डे ऑफ पर वीक उसको देंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डे डिसाइड करेंगे। उस सूरत में जब आपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया या एम्प्लॉय ने आपको नोटिस दे दिया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये था टर्मिनेशन तक का पॉइंट, ठीक है, नोट छोड़ दिए। अब उसकी फाइनल सेटलमेंट भी बननी है। फाइनल सेटलमेंट बननी है तो फाइनल सेटलमेंट के साथ कुछ बेनिफिट्स इंटेक्टेड है। अगर तो आपकी कंपनी में 20 इंप्लॉय से कम है, मतलब 19 इंप्लॉय है, 20 की बात नहीं हो रही, 20 से कम की बात हो रही, 19 इंप्लॉय हैं, तो प्रोविडेंट फंड जो है वो तो आप देंगे, लेकिन ग्रेजुएटी आप पे नहीं लगती। ठीक है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में से एक चीज देनी होती है। तो 20 इंप्लॉय से कम वाली है तो प्रोविडेंट फंड आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर 20 इंप्लॉय से ज्यादा वाली कंपनी है या 20 इंप्लॉयज वाली कंपनी है, तो फिर आपकी मर्जी, आप चूज करें प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी। आपने लेट्स सपोज ग्रेजुएटी चूज कर ली, तो हम पहले ग्रेजुएटी को समझेंगे। ग्रेजुएटी क्या चीज है, ग्रेजुएटी कैपिंग क्या है, अब इसमें भी लॉ ने कुछ चेंजेस की हैं। पहले ग्रेजुएटी समझ लेते हैं। लॉ ये कहता है कि आपकी 1 साल काम करने पे आपको एक ग्रॉस रेमुनरेशन मिलेगा। 1 साल काम करने पे आपको एक ग्रॉस रेमुनरेशन मिलेगा। और उस ग्रॉस रेमुनरेशन का क्या मतलब? ग्रॉस रेमुनरेशन का मतलब ये है, ये यहाँ पे ये पे स्लिप नजर आ रही है आप, अगर आप स्क्रीन पे देखें पेज नंबर 10, ये आपको एक पे स्लिप जो है ना वो मैंने यहाँ पे शो की है। लॉ ये कहता है कि पे स्लिप भी एज पर लॉ डिजाइन करें आप अपनी। मैं पे स्लिप आपको एक्सप्लेन करके वापस पॉइंट पे चला जाऊंगा, सिर्फ ग्रॉस रेमुनरेशन समझाने के लिए मैं पे स्लिप पे आया।
लॉ ये कहता है कि आपने एक ऐसी पे स्लिप बनानी है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट हों। जिसमें ये 9 एलिमेंट मौजूद होंगे तो उसको लीगली प्लेस पे स्लिप माना जाएगा। सबसे पहली चीज आपकी उसमें आप बेसिक वेजेस लिखेंगे, और बेसिक वेजेस किसी भी सूरत किसी भी एम्प्लॉय की गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेजेस से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एम्प्लॉय को कहें जी कि आपकी सैलरी 30,000 है और 10,000 आपके अलाउंसेज है, 40,000 मिनिमम वेजेस आपने पूरा कर दिया। नो, उसकी सैलरी 40,000 है बेसिक वेजेस, अलाउंसेज आपने देने या नहीं देने वो आपकी मर्जी, वो एक्स्ट्रा है। आप उसको इंसेंटिव के साथ मर्ज नहीं कर सकते उन अलाउंसेज को। गॉट द पॉइंट? सो बेसिक वेजेस उसकी कितनी होगी जी, जो मिनिमम वेजेस होगी। देन आप उस पर एक बी सेक्शन बनाएंगे सैलरी स्लिप पे और उसको नाम देंगे अलाउंसेस, और उसमें आप सारे अलाउंसेस डाल देंगे। फिर आप एक सी सेक्शन बनाएंगे, उन अलाउंसेस और बेसिक वेजेस को जमा करके आप उसमें ग्रोस रेम्युनरेशन कैलकुलेट करेंगे। ये है वो ग्रोस रेम्युनरेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। देन आ जाता है डी सेक्शन, डिडक्शन। जो भी डिडक्शन है वो यहां लिखनी है, वो टैक्स की डिडक्शन है, वो ईओबीआई की डिडक्शन है, वो लोन के अगेंस्ट डिडक्शन है, वो फाइन की डिडक्शन है, सब आपने यहां लिख दी। फिर आ जाता है ई सेक्शन, टोटल डिडक्शन जमा करके आपने बतानी है। फिर आ जाता है एफ सेक्शन, तो नेट रेम्युनरेशन निकालना है ग्रोस से टोटल डिडक्शन माइनस करके। फिर आ जाता है जी सेक्शन, उस पे आपने बोनस एक्सग्रेशिया ओवरटाइम सारा मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है एच सेक्शन, टोटल पेमेंट सारी की सारी एफ और जी को जमा करके टोटल पेमेंट बनानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगेन आपको सुन के मजा आएगा, और वो ये है लीव बैलेंस। लॉ ये कहता है कि लीव बैलेंस आपने स्लिप के ऊपर लिख के देना है एवरी सिंगल मंथ, के उसका लीव बैलेंस क्या है। ठीक है जी? सो यहां तक क्लियर है सब कुछ? तो मुझे बताइए, देन हम आगे बढ़े। मुझे चैट में लिखिए क्लियर। बस ये 3-4 क्लियर ही मिले हैं मुझे अभी तक, या मुझे कम शो हो रहे हैं, आई डोंट नो। सो फार सो गुड। समझ आ रही है जी, या बस? समझ आ रही है तो जरा यस करें, मैं भी थोड़ा सांस लूं। हाँ यस, नाइस, थैंक यू सो मच। नीड अबाउट रिप्लाई आपको सारे मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस की आप फिक्र ना करें, क्वेश्चन के लिए आपको मैं, ये नंबर आपके पास आ रहा है, भेज दें क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे एड्रेस हो जाएंगे, डोंट वरी। व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ये। ओके, सो लीव बैलेंस हमने कवर कर लिया। सो लेट्स मूव बैक टू द ग्रेजुएटी कैपिंग। सो ग्रेजुएटी कैपिंग क्या है ना? सो पहले हम ग्रेजुएटी बात करेंगे, फिर ग्रेजुएटी कैपिंग बात करेंगे। ग्रेजुएटी के लिए पहली चीज क्या है, 20 एम्प्लॉयज या 20 से ज्यादा आपकी कंपनी में होने चाहिए तो आप ग्रेजुएटी देंगे। ग्रेजुएटी कितनी देनी है, उसको कनेक्ट किससे किया है, ग्रोस रेम्युनरेशन से। ग्रोस रेम्युनरेशन कैलकुलेट कैसे होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। हर 1 साल की सर्विस पे आप 1 माह की ग्रेजुएटी देते हैं, एक सैलरी उसको ग्रोस सैलरी एज ए ग्रेजुएटी देंगे। जितने साल वो सर्विस करेगा उतने साल की उसको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। लेकिन एक छोटा सा ट्वर्क है ग्रेजुएटी में, और वो ये है कि अगर किसी की सर्विस 1 साल 6 महीने इससे ज्यादा है और 6 महीने उसको कनेक्ट हो गए, तो अब उसको 2 मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप लिखें 1.5 या 1.6 लिखें और उसको आपने राउंड फिगर करें तो क्या बन जाता है, 2। अगर आप लिखें 2.6 और उसको राउंड करें तो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। अगर आप 3.6 लिखें और उसको राउंड करें तो कितने बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सो ग्रेजुएटी का भी लॉ ऐसा ही है। लॉ ये कहता है पहले 1 साल पे उसको एक ग्रेजुएटी मिलेगी, दूसरे साल पे दूसरी, तीसरे साल पे तीसरी। जित आपने उसकी सर्विस कैलकुलेट करनी है, जितने साल आए उतनी उसको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। लेकिन सालों के बाद अगर जो एक्स्ट्रा जो मंथ्स हैं, जो ईयर्स के बाद जो एक्स्ट्रा मंथ बचते हैं, अगर वो मंथ 6 महीने और 6 महीने से ज्यादा है, 6 मंथ एग्जैक्ट हैं या उससे ज्यादा हैं, दोनों सूरतों में उसकी आधी, सॉरी, एक फुल ग्रेजुएटी और ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर 6 मंथ से कम है तो ग्रेजुएटी ऐड नहीं होगी।
ठीक है जी। 5 साल की सर्विस है, 5 ग्रेजुएटी मिलेगी। 5 साल 6 महीने की सर्विस है तो 6 ग्रेजुएटी मिलेगी। 6 साल की सर्विस है, 6 ही मिलेंगी। लेकिन 6 साल 6 महीने की सर्विस है या इससे ज्यादा है, 7 साल से कम भी है, तो 7 ग्रेजुएटी मिलेगी। ये इसकी कैलकुलेशन है ग्रेजुएटी की। अब आ जाता है ग्रेजुएटी कैपिंग। इस लॉ ने ग्रेजुएटी कैपिंग भी दे दी है। ग्रेजुएटी कैपिंग से क्या मुराद? ग्रेजुएटी कैपिंग से मुराद ये है कि इस सूरत में, ये सिर्फ उस सूरत में इंप्लीमेंट होगी कि अगर आपकी कंपनी कोई सर्टेन डेजिग्नेशन को अपनी कंपनी से खत्म करना चाहती है। अगर आपकी कंपनी कुछ सर्टेन डेजिग्नेशंस को बिल्कुल ही खत्म करना चाहती है अपने अदारे से, एक डिपार्टमेंट पूरे के पूरे को खत्म करना चाहती है अपने अदारे से, एक पूरे का पूरा यूनिट ले ऑफ करना चाहती है, ये उन इमरजेंसी सिचुएशंस की सूरत में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी। उसमें क्या होगा कि वो तमाम एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी जिनकी सैलरी मिनिमम वेजेस के 5 गुना से कम है। आज की सूरत में अगर आप देख लें तो जिनकी 2 लाख रुपए से कम सैलरी है, उनकी जो टर्मिनेशन के बावजूद, आपके तो ले ऑफ करने के बावजूद, उसको जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो जितने साल काम किया होगा उतने साल की मिलेगी। मतलब अगर उसने 20 साल भी काम किया है तो आप उसको 20 साल की ग्रेजुएटी देंगे। ठीक है जी। लेकिन दूसरा सिनेरियो दूसरा सिनेरियो ये है कि अब अगर उसकी 5 गुना से ज्यादा है तो 10 गुना से कम है, तो इसके दरमियान जो आते हैं, मतलब 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख के दरमियान वाले लोग, इस सैलरी वाले जो लोग हैं, इनको जो मैक्सिमम ग्रेजुएटी मिलेगी वो 10 साल की मिलेगी, उस सूरत में कि अगर कंपनी ले ऑफ कर रही हो और फाइनल सेटलमेंट बनानी पड़े। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि अगर उसने 20 साल काम किया है, 15 साल की है, 16 साल की है, उसको जो एंड पे ग्रेजुएटी मिलनी है वो 12, सॉरी सॉरी 12 मिलनी है। ठीक है, 12 साल की ग्रेजुएटी मिलनी है। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय की सर्विस 12 साल से कम है, मतलब लेट्स सपोज उसकी 6 साल है, तो 6 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी। 6 की 6, 7 साल है तो 7 ग्रेजुएटी मिल जाएंगी, 8 साल है तो 8 मिल जाएंगी, 9 साल है 9 मिल जाएगी, 10 है तो 10 मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब आ जाते हैं इससे अगला पॉइंट। अगर किसी की सैलरी 10 गुना से भी ज्यादा है तो फिर जो मैक्सिमम उसको रेम्युनरेशन मिलना है ग्रेजुएटी के अगेंस्ट, वो 6 ग्रेजुएटीज है। वो कितनी ग्रेजुएटीज हैं जी? वो है 6 ग्रेजुएटीज। मतलब उसने अगर 7 साल सर्विस की है तो 6 मिलेंगी, 6 साल की है 6 मिलेंगी, 5 साल की है तो 5 मिलेंगी, 4 साल की है 4 साल मिलेंगी, 4 ही मिलेंगी। लेकिन अगर 6 से जितने भी साल ज्यादा काम किया है तब उसको इतनी ही ग्रेजुएटी मिलनी। और इसी के साथ करते हैं कनेक्ट प्रोविडेंट फंड। अब अगर आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप उसका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्शन कितनी होनी चाहिए? एज पर लॉ कितनी डिडक्शन है जो उसकी होगी? उसके ग्रॉस रेम्युनरेशन का 8.33% उसकी डिडक्शन होगी ईच एंड एवरी सिंगल मंथ। और वो 8.33 में आप अपनी तरफ से 8.33 जमा करेंगे। टोटल ये 16.66 जमा करते करते साल के एंड पे उसकी सैलरी का 200%, मतलब 2 गुना बन जाएगा। अगर उसकी सैलरी 2 लाख थी तो 2 लाख ही आपने उसका भी पूरे साल में डिडक्ट किया है और 2 लाख अपनी साइड से ऐड किया है, और टोटल उसका जो आपके पास पीएफ पड़ा होगा वो 4 लाख पड़ा होगा। लॉ ये कहता है कि प्रोविडेंट फंड का एक साइड का कंट्रीब्यूशन किसी भी सूरत उसकी एनुअल ग्रेजुएटी के अगेंस्ट बनने वाला जो सिंगल रेम्युनरेशन है उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएटी अगर ग्रॉस सैलरी 1 है, उसी ग्रॉस सैलरी को आपने 12 पे डिवाइड करके परसेंटेज निकाल के आपने उसकी डिडक्शन करनी है, जो कि बनती है 8.33%। सो दिस इज एंड फॉर द प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया। अब हम आते हैं हमारे वर्क प्लेस इंजरीज। यहां पे आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी।
अगर आप इंश्योरेंस से ये अपना रिस्क कवर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है आप लोगों के लिए। और वो लाइबिलिटी क्या है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। आपकी कंपनी की प्रीमिसेस के अंदर नेचुरल डिजास्टर, अननेचुरल डिजास्टर, बिल्डिंग गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी सूरत, कोई भी किसी भी वजह से, चाहे वो बंदे को वैसे खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो, आपकी प्रीमिसेस के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मसला हो गया तो उसका 100% एंड टू एंड मेडिकल बेनिफिट आपने उसका कवर करना है। मेडिकल एक्सपेंस आपने कवर करना है, और वो मेडिकल एक्सपेंस लिमिटेड नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन हो, डॉक्टर कंसल्टेशन हो, ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, रिहेबिलिटेशन हो, फिजियोथेरेपी हो, और एनी अदर रिलेटेड मेडिकेयर, उसका ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, जितना भी एंड टू एंड एक्सपेंस है वो सारे का सारा आप मेडिकल एक्सपेंस उसको देंगे। और इसकी आपने रिपोर्ट बना के देनी है कंपनसेशन कमिश्नर को कि आपने वो मेडिकल पूरा किया है। अगर आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन कमिश्नर के पास चला जाता है तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है और आपसे सारे के सारे एंड टू एंड बेनिफिट क्लेम करेगा। तो जो हॉस्पिटलाइजेशन से लेके सर्जरी तक, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेके फिजियोथेरापी तक, मेडिसिन से लेके उसकी सारी की सारी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मेडिकली कवर्ड होनी चाहिए, हाँ, आपके ईच एंड एवरी सिंगल एम्प्लॉय की। और अगर खुदा ना खास्ता उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, दो सिनेरियो ना, एक तो इंजरी हुई, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, दूसरा है इन आपकी कंपनी में खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, तो देन क्या करेंगे आप? आपने 8 लाख रुपया उस एम्प्लॉय के को एज ए डेथ बेनिफिट आपने देना है, और वो 8 लाख आपने जमा करवाना है कंपनसेशन कमिश्नर को। आपने वो 8 लाख जमा करवाना है कंपनसेशन कमिश्नर को। डजेंट मैटर कि आपने उसकी इंश्योरेंस कराई है या नहीं कराई। हर एम्प्लॉय, खुदा ना खास्ता हर वो एम्प्लॉय जो आपकी प्रेमिसेस में जिसकी डेथ हो गई, उसको 8 लाख रुपए का बेनिफिट आपने देना है। एंड टू योर सरप्राइज, ये जो 8 लाख रुपए की एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है वो शायद 2,000 रुपए की भी नहीं है। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। पेड लीव, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर होना चाहिए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तमाम चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लायंसेस को मीट करती हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपके जितने भी दरवाजे हैं, जो भी रूम है, जो भी वर्किंग एरियाज हैं, उनके जितने भी दरवाजे हैं, डोर हैं, आईएसओ गाइडलाइन के हिसाब से वो बाहर को खुलने चाहिए। अगर वो बाहर को नहीं खुलते, अंदर को खुलते हैं, तो आईएसओ की हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट। तो आपकी कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इंस्पेक्टर है उसको आपने ट्रेनिंग्स पे भेजना है। उस ट्रेनिंग की कॉस्ट, और दूसरा उस ट्रेनिंग वाले दिन उसकी जो लीव की कॉस्ट है वो भी एम्प्लॉयर उठाएगा, लॉ ये कहता है। ठीक है जी। उसके बाद ये बाकी नॉर्मली हैं चीज़ें। ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं, लॉ ये कहता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को देने हैं। वहाँ पे फर्स्ट एड मौजूद हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो, लेटरिन हो, फेंसिंग हो, शेल्टर्स हो, कैंटीन हो, ट्रेंचेस हो, रेस्ट रूम हो, सेफ्टी इन बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेमिसेस में आपके एम्प्लॉयज़ के लिए मौजूद होनी चाहिए। आप ही अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ काम करती हैं, अगर उनके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर 200 से ज्यादा हैं, तो उन तमाम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आपके पास रेजिडेंशियल, उसको उसने क्या नाम दिया था मुझे, अब अपार्टमेंट या कुछ स्पेसिफिक नेम था, लेकिन यह है कि आपने उसको रेजिडेंशियल सपोर्ट देनी है उन एम्प्लॉयज को। अगर वो रिमोट एरिया है, वो नॉन रिमोट एरिया है, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और अगर उनको रेजिडेंस की जरूरत है तो वो आप साइट डेवलप करेंगे, रेजिडेंशियल साइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वल रेमुनरेशन फॉर इक्वल वर्क, पेनल्टीज और बाकी सारी चीजें। इक्वल रेमुनरेशन पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, एंड देन हम हैंड ओवर करेंगे सेशन को शहजाद साहब की तरफ। और बल्कि एक पॉइंट मेरा रहता है, सो पहले मैं ये कवर करता हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू द पेनल्टी साइड।
एम्प्लॉय एग्रीमेंट। एम्प्लॉय एग्रीमेंट भी लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि एम्प्लॉय एग्रीमेंट कैसा बनेगा। और इसी के साथ लॉ ने तीन चीजें और भी डिफाइन की। मैं वन बाय वन वो बता देता हूँ। इस लॉ ने लिख दिया है कि किसी भी सूरत जो इंटर्नशिप है किसी भी कंपनी की, वो नॉन पेड नहीं होगी। अब आपको 50% ऑफ मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। क्लियरली लॉ ने डिफाइन कर दिया है। दूसरी चीज, लॉ ने ये क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि जो प्रोबेशन पीरियड है वो 90 डेज से ऊपर का नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सिनेरियो है। और लॉ ने लिख दिया है कि 90th डे पे अगर आपने इन रिटर्न उस एम्प्लॉय को ना कहा कि आप हमें, आपकी जरूरत नहीं है, हमें आप समझ में नहीं आए या आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो हम किसी और को देख रहे हैं, अगर आपने इन रिटर्न उसको ये नोटिस ना दिया, तो वो 91st डे के ऊपर आप उसको 1 मंथ का नोटिस सर्व करके उसको टर्मिनेट करेंगे अगर आपने करना है। किसी भी सूरत जो भी आपके माइंड में अगर कोई आइडियाज आ रहे हैं, हर तरह से उसने ब्लॉक कर दिया है। 90 डेज मीन्स 90 डेज, नो मोर प्रोपोर्शन, नो मोर प्रोपोर्शन एक्सटेंशन। ठीक है जी। सो मैंने आपको इंटर्नशिप की मिनिमम वेजेस का भी बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो प्रोबेशन है वो भी 90 डेज पे लिमिट कर दिया है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे। लॉ ये कहता है कि आप जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाएंगे वो चार हिस्सों में डिवाइड होगा। सबसे पहला ऊपर एक पोर्शन होगा, सेक्शन होगा, उसमें आप एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल लिखेंगे कि जनाब हम आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपका ये बात फालिद साहब का नाम है, आपका मोबाइल नंबर ये है, और हम आपको हायर कर रहे हैं इस सर्टन पोजीशन पे। ठीक है, ये बेसिक डिटेल हो गई। अब दूसरी पोर्शन में आएगी। दूसरे पोर्शन में आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल डालेंगे कि जनाब हम ये, हमारी कंपनी का ये नाम है, हमारा ईओबीआई में रजिस्टर्ड नंबर ये है, हमारा सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड नंबर ये है, और हम आपको ये बेनिफिट्स एंड पर्क्स, इतनी सिक लीव, इतनी कैजुअल लीव, इतनी एनुअल आपको अप्रेजल देंगे, ये आप पूरा ईच एंड एवरी सिंगल बेनिफिट जो भी आप उसको इंटाइटल करना चाहते हैं वो सारा आप उसमें लिखेंगे। फिर एक तीसरा सेक्शन आपने बनाना है एम्प्लॉय एग्रीमेंट के ऊपर, और वो है एक सेक्शन बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे कि हमने आपको पोर्टल के ऊपर, ईओबीआई पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, अगर वो एप्लीकेबल हुआ, सोशल सिक्योरिटी की एक रेंज होती है। आपने एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करके उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे लिख के देना है कि हम, हमारी तरफ से आप ये रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है जी। अब उससे अगला सेक्शन है फिर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और अगर आप इस सेक्शन में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपके लिए वबाले जान बनेगा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाला डिपार्टमेंट। और वो ये है कि आपने एंड टू एंड जेडी, केपीआई, स्कोप ऑफ वर्क उसका डिफाइन करना है उसके ऊपर, उसके एग्रीमेंट में आपने लिखना है कि आपके ये टास्क हैं, और आपके ये केपीआईज हैं, और आपका स्कोप ऑफ वर्क ये है। ये स्कोप ऑफ वर्क आपको बचाएगा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस से, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने एक फीमेल एक मेल को हायर किया और दोनों की सैलरी में 20-30 हज़ार का डिफरेंस है, और जेडी बिल्कुल सेम है, और आपने चैट जीपीटी जेडीज डाली हुई है, तो वो आपके लिए वो बाले जान बन जाए। फिर वो आप नहीं संभाल पाएंगे, नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है जी। सो ये था एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये एंड टू एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और लॉ ये कहता है कि जिस दिन आपका एम्प्लॉय आपके पास काम करने आएगा, एट द फर्स्ट डे ऑफ हिज सर्विस, आप उसके पास ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। आपके किसी भी एम्प्लॉय के पास अगर ये एग्रीमेंट नहीं है, तो आपके पास बोगस एम्प्लॉयज रखने का आपके ऊपर केस होगा। ठीक है जी, नॉन लिस्टेड एम्प्लॉयज रखने का, और देन उसकी फिर सर्टन लाइबिलिटीज है। आपके हर एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय कार्ड होना चाहिए, लॉ ये कहता है। अब आ जाते हैं हमारा वापस इक्वल रेमुनरेशंस और इक्वल वर्क के ऊपर। वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, पेनल्टीज और बाकी चीजें जो है ना वो शहजाद साहब डिस्कस करेंगे। शहजाद साहब, आर यू विद अस? सो लेट मी नो। जी शान साहब। सब परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आई थिंक सो कि मैं काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर चुका हूँ अपने एंड की। सो फॉर पेनल्टीज ओवर टू यू। मैं अपना वीडियो जो है वो ऑफ करता हूँ और स्क्रीन जो है उसको मैं शेयर रखूंगा।
सो दैट कि आप इसको। श्योर सर, थैंक यू। अच्छा जी, पहले सबसे पहले तो निशान साहब, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चंस भी देख रहा था काफ़ी हद तक। तो क्योंकि शुरू में जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस थे वो अभी काफ़ी हद तक तो उनमें क्लियर हो गए हैं। एक दो सिर्फ जो है वो मेरे जहन में थे कि किसी दोस्त ने जो है बात की थी कि वर्कर की डेफिनेशन पे कि क्या जो एग्जेक्टिव लेवल के लोग हैं वो भी इसमें लेबर कोड में कवर होते हैं। तो जी बिल्कुल, इस कोड ने जो एक डिफरेंस था वर्कमैन का उसको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ जो टर्म है वो वर्कर की ही यूज़ हुई है, और वो जो वर्कर टर्म है उसके अंदर जो उसकी बाकी, चूँकि जिस तरह से एक्सेप्शंस शुरू में शान साहब ने बता दी थी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या पुलिस फोर्स के या आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अलावा तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कर्स ही होंगे। और एक और क्वेश्चन था कि ये क्या ये हर जगह पे अप्लाई होगा? तो जी बिल्कुल, जो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में जो जगह होगी उस पे ये अप्लाई होगा, फ्रॉम शॉप टू दी मल्टी कॉरपोरेट बिजनेस, हर हर जगह पे जो है इसको अप्लाई करेंगे। और एक साथ में एक सेपरेट था ग्रेजुएटी के ऊपर, जो किसी ने पूछा था कि ये जो बेनिफिट्स हैं, लाइक ये कि इसमें बेसिक वर्ड जो यूज़ हुआ वो रेमुनरेशन का है। वो आपने रेमुनरेशन पे ग्रेजुटी देनी है, और रेमुनरेशन की जो टर्म है वो सिंपल उसको ये समझ लें कि जो स्टैटिक, जो आप कह शिदा लें कि साहब, पर जी जी। Shada sir, sorry to cut you. Actually, we need to cover this session before 7:15. So I think कि आप जरा उस वाले पार्ट को, पेनल्टीज वाले पार्ट को कवर कर ओ लें। श्योर, श्योर एंड श्योर कमिंग श्योर बैक टू श्योर। द क्वेश्चंस वी हैव देयर, उसके लिए तो हमें वो रीच आउट कर लेंगे, तो हम उनको सॉल्व भी जी कर जी देंगे। उनके पास डिटेल्स सर, हैं हमारी। सर ओके जी फॉर श्योर। अच्छा, तो जो मेजर टॉपिक है शाह साहब, अगर आप स्लाइड शेयर कर लें, जो हमारे पास लास्ट वाली होती है इसकी पेनल्टीज की, तो ज़्यादा बेस्ट है। चलें, ये आ गया जी। अच्छा, तो ज- जो सिक्स्थ पार्ट है, द पार्ट 6 ऑफ द लेबर कोड कोड जो है वो बेसिकली डील करता है कोर्ट्स के साथ या लिटिगेशन के साथ। जिस तरह से चूंकि वो मेरे साथ भी रिलेट करता है, तो उसमें एक जो मैकेनिज्म दिया गया है, जिस तरह से शान साहब ने बात की थी कि ये लॉ जो है वो टूथलेस नहीं है। इसके अब हम बात करेंगे इसके क्या वो टूथ है जिसकी वजह से इसको इन्फोर्स किया जाएगा, और जिसको अब इसको सीरियस भी लेना पड़ेगा। वो है इसके अंदर जो नई एडिशन की है, ये उन्होंने एक मैकेनिज्म डिफाइन की है इसके इन्फोर्समेंट के लिए। लाइक ये कि अगर हम स्टार्ट में देखें, अब जहाँ तक पहले 5 पार्ट हैं इस कोड के, वो तो रिलेट करते हैं, स्टार्ट में डेफिनेशंस आ जाती हैं, उसके बाद फिर जो क्लास ऑफ वर्कर्स हैं डिफरेंट वो आ जाते हैं, इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी ऐड कर दिए हैं जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, टैक्स राइडिंग, हेलिंग सर्विसेज हैं। फिर जिस तरह से मेन जो शान साहब का कंटेंट था वो था पार्ट 3 ऑफ द कोड। और फिर इस तरह से पार्ट 4 जो है वो मज़ीद उसको जो है डिटेल में ले जाता है, पार्ट 5 भी। जब लेकिन जब हम मुझे जंप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में स्टार्ट लेता है, वो कहता है कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो है वो जो बॉडीज हैं वो बनाएंगे। लाइक ये कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो सबसे पहले वहाँ पे मीडिएशन की ऑप्शन होनी चाहिए, वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की ऑप्शन होनी चाहिए। और वहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई इस तरह से डिफाइंड एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव भी हो, एम्प्लॉयज़ की भी हो, वर्कर्स की भी हो। और उसके बाद फिर इसमें प्रीवियस जो मैकेनिज्म था लेबर कोर्ट्स का, वेजेस अथॉरिटीज़ का, जो पेंडिंग ड्यूज के रिलेटेड, वो वही इंटैक्ट रखा गया है। अब जो मेन इसमें चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पेनल्टीज का इस तरह से कि अगर कोई भी वॉयलेशन होती है, किसी भी तरह की वॉयलेशन एम्प्लॉयर एंड से होती है या इवन एम्प्लॉय एंड से होती है टू सर्टन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, तो उस सूरत में एक जो वन पेनल्टी इज इक्वल टू द वन मिनिमम वेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, हमारे सिनेरियो में पंजाब गवर्नमेंट। तो लेट्स सपोज अगर एक बड़ा बेसिक है कि अगर कोई कंपनी जो है वो एम्प्लॉय एग्रीमेंट नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को,
तो वहाँ पे उस सिनेरियो में उस जो वो जो वायलेशन है उस सिनेरियो में उसमें 2 to 5 जो कह लें कि मिनिमम वेजेस हैं वो आपको बतौर पेनल्टी देनी पड़ सकती हैं। अब लाइक ये कि इस तरह ही अगर वायलेशन का जो है वो स्कोप बढ़ता जाता है, उसमें आप बड़ी वायलेशंस करते हैं लाइक रिलेटेड टू दी सीरियस हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क जो है वो क्रिएट होता है, तो उसमें वो 20-25 तक भी जो है वो जो पेनल्टीज हैं वो जा सकती हैं। इसमें एक इसको समझने के लिए उन्होंने कुछ सेक्शंस हैं वैसे जो 369 सेक्शन है उसमें उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में उन्होंने यहाँ पे एक साइड पे वॉलेशन, नेक्स्ट साइड पे जो है उसकी उसका जो रेलिवेंट ऑफिस है, लाइक जिस तरह से कि अगर कोई वॉलेशन होती है उसमें आप कहते हैं कि जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप ये यहाँ पे अपना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो उस सिनेरियो में वहाँ पे ऑप्शन ये होती है कि आप के पास क्या जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस है वो वहाँ पे मेंशन होगा। तो आप उस ऑफिस को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और उस ऑफिस के पास फिर नेक्स्ट आगे इख्तियार है कि वो उस वायलेशन के लिए उसको उसको कवर करने के लिए वो जिस तरह से पेनल्टीज के फिर एक सेक्शन 394 में और 402 में आगे फिर टेबल्स बने हुए हैं कि एक वायलेशन जो है वो अगर वो सिविल नेचर की वायलेशन है तो उसमें जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पेनल्टीज उस उतने मल्टीपल टाइम्स जो है विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन जो है वो ग्रांट की जाएंगी। और इस तरह से फिर अगर क्रिमिनल नेचर की वायलेशन है वो 402 सेक्शन है। तो टोटल इसके 435 सेक्शंस हैं और 6 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स में ज़्यादातर मेडिकल जो कह लें कि बेनिफिट्स हैं वो कवर किए गए हैं कि हेल्थ इंजरी बेनिफिट्स में अगर ड्यूरिंग वर्क प्लेस जो है वो कोई इंजरी होती है वर्किंग आवर्स में, तो उसमें जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे उसकी यहाँ मेडिकल जो केयर की सूरत में जो है वो अमाउंट दी जाएगी, वो ज़्यादा कवर की गई है। अब जहाँ तक बात है ये जो सिविल और क्रिमिनल नेचर की पेनल्टीज हैं इनमें इसका लॉ का जो इसका टूथ है जो इसको बाकियों से जो है वो मुमताज करता है, या इसकी एक कह लें कि अभी टाइम दिया गया है, इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि अगर इसको ये टाइम ना दिया जाता तो देखें ये जिशान साहब ने जिस तरह से इतना मतलब तकरीबन भी ये मेरे ख्याल से 10th प्लस सेशन होगा फ्रॉम इस्लामाबाद टू फैसलाबाद टू ऑल द रीजन्स। तो जो फिजिकल सेशंस किए हैं ऑनलाइन के तो वैसे नंबर ऑफ ऑनलाइन सेशंस, तो ये जो टाइम है 10 फरवरी का गजट नोटिफिकेशन होने के बाद से अब जब भी इसको इन्फोर्स करना है तो उसके दौरान जो आज हम इस पे बात कर रहे हैं इसको हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, वो टाइम ना मिलता तो ये तो हर तरफ ही वायलेशंस हो जाती। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक चले हम इसके ऊपर हम बात करें, इसको एजुकेट भी कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेन टूथ है वो ये है कि ये पेनल्टीज जो है वो किसी सूरत खत्म नहीं होती, ये पाइल अप होती जाएंगी। लाइक ये कि अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वायलेशन हो रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय एग्रीमेंट नहीं दे रही, या लेट सपोज कोई बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दे रहे, या उस पे जो इस कोड को अगर वो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, मतलब इसको इसके यानी कि इस कोड के ऊपर अमल दरामद इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इसको अमल करने का वो ये है कि आप मिनिमम इस कोड पे अमल करेंगे। हाँ, इससे ऊपर अगर आप कुछ देना चाहें, लाइक ये कि अगर मिनिमम वेज है तो आपने 40 देनी ही देनी है, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप चाहे ऊपर जितना मर्जी दे लें, मजदूर को आप 80,000 देना शुरू कर दें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 40 देनी है। इस तरह से बाकी बेनिफिट्स भी जो है वो मिनिमम इस कोड ने जो है वो इंश्योर करने हैं, और जो आपने बेनिफिट्स देने हैं वो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी, वो जो मिनिमम वेज है उससे अबव देने हैं। तो इस कोड के अंदर जो पेनल्टीज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेनल्टीज हमेशा गैदर होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दो तो लेबर इंस्पेक्टर या लेबर डिपार्टमेंट मैनेज कर लें और वो वायलेशन करते रहें। जस्ट इतने सी देर है कि एक को अल्लाह का वली को ईमानदार चीफ इंस्पेक्टर आ जाएगा और वो सब जो है वो शराजा बिखर जाएगा, जिस तरह से बात की कि लाइसेंस तक कैंसिल हो जाएगा और वो सारा कुछ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको आप आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम पीरियड के लिए आप इसको दबा लें और आइंदा के लिए आप उसको एडजस्ट कर लें।
पेनल्टीज ऑलवेज विल बी पाइलिंग अप, और वो इस एक्सटेंड तक जा रही होंगी कि एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है कंपनी अपने बजट के साथ उसको पेनल्टीज को कंपेयर कर रही हो। तो प्रॉब्लम इज दैट, इस लिहाज से इसको जो है उन्होंने इसके ट्रूथ बनाए हैं, यानी कि इसको एनफोर्सेबल करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हो सकता है फिर भी अवाम जो है हमारे यहाँ पे, चूंकि जुगाड़ प्रोग्राम होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ इसमें से भी निकाले जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम पीरियड इसको काफ़ी हद तक जो है बनाने वालों ने, इस कोड को बनाने वालों ने ये चीज़ मेक श्योर की है कि इसको इसकी जो लेटर एंड स्पिरिट है उसको इन्फोर्स किया जाए, और हमारे यहाँ पे जो है कंप्लाइंस उनको बेटर किया जाए, बेटर से बेटर जो है वो बनाया जा सके। जिशान साहब, आई थिंक सो आपने 7:15 तक का जो है वो, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज। Yes, exactly. जी Thank बिल्कुल you, sir. ठीक है। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये व्हाट्सएप का ग्रुप नज़र आ रहा होगा, आप सबको। इसको आप लोग स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगले 5 मिनट में नमाज का टाइम है। आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप इस ग्रुप में भेज दें। ये ग्रुप ओपन है आपकी क्यूरीज के लिए। और ये क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ हम आज के सेशन को इधर ही क्लोज कर लेंगे, या जैसे आई कप चाहे। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप ग्रुप में भेज दें अपने इंट्रोडक्शन के साथ, हम वहाँ पे आपको सारी एड्रेस कर देंगे जी। ठीक है। टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, सो ओवर टू यू आई कैप फैमिली जी, प्लीज। Right. At this point, we will pause briefly to observe Maghrib prayer. I request all our participants to take this short break after their prayers and return refreshed so that we can continue with the remainder of our session. I think we will reconvene at 7:30 p.m. So I would request kindly rejoin promptly so that we can resume without delay. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum and welcome back everyone. We are now ready to resume the second part of our session, which is question and answer session. So let me take one by one. First question is how gender discrimination will be detected. ये जी, इसमें बेसिक जो क्राइटेरिया है कि लेट्स सपोज एक जो स्टैंडर्ड है कि सेम बेनिफिट्स फॉर द सेम नेचर ऑफ वर्क। लाइक ये कि अगर एक ही रोल जो, अगर आप वो मेल से करा रहे हैं तो आप उनको पे कर रहे हैं 1 लाख, और वही रोल जब फीमेल करती है तो आप उसको 50,000 पे करते हैं। तो ये भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की टाइप है। और उसके अलावा जो लॉ ने सहूलियात दी हैं, जो बेनिफिट्स दिए हैं, या एक कहने के अरेंजमेंट्स करने का कहा है स्पेसिफिकली फीमेल के लिए, अगर वो नहीं की जाती तो वो भी अंडर द डेफिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आती हैं। फिर लेट्स सपोज अगर आप मैटरनिटी लीव के दौरान किसी फीमेल को जॉब से निकाल देते हैं तो वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। और द अदर पार्ट, अगर जिस तरह से पैटर्निटी लीव में अगर आप मेल को वो पैटर्निटी, पिछले दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, ये जो फेडरल ओम्बड्स पर्सन है उनकी ऑफिस की तरफ से एक डिसीजन भी आया है इस पे कि नेशनल बैंक ने जो स्टेट बैंक ने आई थिंक सो पैटर्निटी लीव नहीं थी ग्रांट की, तो उन्होंने उसको उनको आई थिंक 10 मिलियन जो है वो फाइन भी की है। तो इस तरह से ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है कि जो जो लॉ ने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि चाहे वो पर्क्स प्रिविलेजेस के हिसाब से या वर्क प्लेस जो है अरेंजमेंट्स के हिसाब से, अगर वो नहीं पूरी की जाती तो अंडर द डेफिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ जाएगा। Right. So next question, is it applicable to NPOs and educational school or institute working as NPOs? I think आई yes. डेफिनेटली डेफिनेटली ऑल काइंड ऑफ वर्क प्लेसेस, इसमें एक छोटी सी दुकान से लेके जहाँ पे भी बुनियादी तौर पे ये एक इसकी जो है एक कोड के अंदर बकायदा से ये एक जगह पे लिखा भी गया है। वैसे शान साहब ने अगर वो आज वो अगर कई दफ़ा सेशंस में भी वो बात बताई है कि जहाँ पे भी वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होगी उसको एक उन्होंने एक मतलब कहने का ट्राई किया है एक डिफाइन करने में। लेट्स सपोज सेल्फ जो वर्कर्स हैं जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, इवन वो भी इसके कोड के अंडर जो है वो कवर होते हैं। ये तो खैर जो एनपीओज हैं या स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ऑल दी वर्क प्लेसेस जो है इसमें कवर है। Right. So I am also skipping some of the questions which are already addressed or are some, you can say, repeating in nature. श्योर। Next question is overtime on basis wages
or gross wages, where bifurcation of salary is made by the company. ये जो ओटी है, ये बुनियादी तौर पे अगर जो ओटी दिया जाता है वो तो बेसिक जो मैं इसमें मुझे थोड़ी सी वैसे कन्फ्यूजन है। मैं शान साहब की तरफ रेफर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरा ज़्यादा लिंक है लीगल फील्ड के साथ। तो ये जो कंपनीज की प्रैक्टिस है उस हवाले से ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे से। तो यहाँ तो अगर वो अवेलेबल है तो एड्रेस कर लें, नहीं तो फिर इसको हम एट दी एंड जो जी, है वो। मुझे क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज, स्टेप बाय स्टेप। Overtime on basis wages or gross wages, where ग्रॉस bifurcation of वेजेस, salary is made by the company. मतलब ग्रॉस वेजेस। आप आगे से क्वेश्चन रिपीट, आप अगला पार्ट करिए। मैं उर्दू में बता देता हूँ, मतलब ओवर नहीं, टाइम क्या वेजेस की बेस पर होगा या ग्रॉस वेज की बेस पर होगा? सर मैंने वो उसका आंसर कर दिया कि वो ग्रॉस वेजेस है। अब आगे ग्रॉस आगे वेजेस। आए। अब अगला जी पार्ट जी, इसका क्या क्वेश्चन का? ये इतना ही था आई वेयर थिंक। आगे इंग्लिश में ये लिखा है, वेयर बाइफरकेशन ऑफ सैलरी इज मेड बाय द कंपनी। एक कंपनी ही नहीं, उसकी बाइफरकेशन कर रही सैलरी की। नहीं, बाइफरकेशन जो है वो अब कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि पे स्लिप का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया लॉ क्या कहता है। तो वो उसी के अगेंस्ट उसकी बाइफरकेशन होनी है। और उसमें जो वर्ड लिखा है ग्रॉस रेमुनरेशन, उसी को ग्रॉस रेमुनरेशन माना जाएगा। कंपनी की अपनी बाइफरकेशन से किसी चीज को ग्रॉस रेमुनरेशन कह देना, उसका ग्रॉस रेमुनरेशन नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस एप्लीकेबल टू इंटर्नीज एंड नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एज वेल? डेफिनेटली। अब इंटरनीज जो हैं उनके लिए तो उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो हाफ मिनिमम वेज होगी वो उनको पे करनी ज़रूरी है। और इसको अटैच भी किया गया है, जो हमारा मॉडल एक चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ कि उनके लिए मैंडेटरी इंटर्नशिप हो, फिर इंडस्ट्री के साथ भी। चूँकि ये सारी चीज़ें इसको ऑल्दो इन्फोर्सेबल करने के लिए अब रूल्स बनेंगे, तो उसमें डिफाइन होगी चीज़ें कि कितने इंटर्नीज हर मैंडेटरी हैं कि हर इंडस्ट्री जो है वो उतने इंटर्नीज ले ही ले, ताकि साथ में जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं वो इसमें जो है वो लगें। पार्ट सेकंड क्या था इस क्वेश्चन का? दूसरे इंटरनेट के अलावा क्या नॉन पूछा? अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन नॉन। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। अच्छा, इसमें इसमें एक है, दो सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। एक है फिक्स टर्म एम्प्लॉय और दूसरा है ये जो जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। यानी कि सिंपल इज दैट कि यहाँ पे कोड में विद ए फ्लक्स ऑफ टाइम डिफाइन होना है। अब हमारे किसी भी, हम जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले करते थे कि जी एग्जैक्टली। हायरिंग होगी 89 डेज पे, डेली वेजर पे, ये वो, उन चीज़ों से हट के अब इसको अगर अगर किसी एम्प्लॉय को टाइम हो गया है इतना सर्टन कि वो उसने 9 मंथ पूरे कर लिए हैं, उसने विद लेंथ ऑफ टाइम वो काम कर रहा है, परमानेंट नेचर का वर्क है, तो उसको उस नेचर उसकी उस हिसाब से उसको डिफाइन किया जाएगा। लाइक ये कि अगर एक प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है, फिक्स एम्प्लॉय नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है। अब अगर वो प्रोजेक्ट ही आगे से आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो उसको अब ही इज नो मोर अब प्रोजेक्ट बेस्ड, तो वो समझा यही जाएगा कि ये भी परमानेंट नेचर का एम्प्लॉय है। हाँ, और अगर आप ये डिफाइन कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, तब तक का प्रोजेक्ट है, तो फिर उन्होंने उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो भी ज़्यादा रखी हुई है। आपने उनको एक्स्ट्रा पे करना है, ताकि अगर कोई बंदा स्पेसिफिकली आपके साथ एंगेज होता है एक सर्टन प्रोजेक्ट के लिए, तो उसने ऑलरेडी एक सेक्रीफाइस किया है अपना परमानेंट नेचर ऑफ वर्क। लाइक अगर वो कहीं काम कर रहा था, नहीं भी कर रहा था, तो उसने 6 महीने 8 महीने बाद अपना और काम भी देखना है, तो उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के उसमें उसको जो है वो पे ज़्यादा किया जाएगा। इसमें सारा डिफाइन है ये। राइट। Next question is, overtime on weekly off legalized in PLC under normal circumstances? Like overtime on weekly off is legalized in PLC under normal circumstances. ये बेसिकली जो वीकली ऑफ डेज हैं उनमें अगर ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ है, नॉर्मलाइज। मैं अगर इफ आई एम राइट कि ये कह रहे हैं कि अगर वर्क जो वीकली हॉलीडेज हैं या उन और टाइप की हॉलीडेज भी, उनमें एक इसको लॉ ने शायद नॉर्मलाइज कर दिया कि आप काम ले सकें और वो जो ओटी है वो बनता रहे। इसमें ऐसा है कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट है कि एम्प्लॉयर भी जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और एम्प्लॉय भी जो है उसको भी इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि अगर कंपनी को रिक्वायर्ड है कि ये ज़रूरी है, तो दोनों तरह से जो है इनको बैलेंस करके जो है वो डिफाइन किया जाएगा। नॉर्मलाइज वर्ड मतलब ये अगर एग्जैक्ट सेंस में मैंने ये अगर कोशिश की है जवाब देने की, अगर फिर भी Right, कोई right, right. कंफ्यूजन है तो जी जी।
So next question is like they are reiterating the statement that you have earlier made. You said that if there are 19 employees, then PF is applicable. As per my understanding, either PF or GF is applicable where employees are 20 or more. Please elaborate. That was the question. ये जो अभी करंट जो लॉ है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने रेसिप्रोकेट की हैं कि जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 20 का बार है और जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 50 का बार है। ठीक है। अब कमर्शियल में आप मिसाल कॉरपोरेट ऑफिस हैं जिस तरह से आप बाकी ऑफिस इंडस्ट्रियल में डिफरेंशिएट करते हैं 50 का जो है बार। तो आई थिंक सो आई एग्री। बाकी अगर शान साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो इज़ वेलकम। लेकिन ये स्टिल माई एंड 20 का बार है ये। प्लीज प्रोसीड। Okay, next question is, can you revise the total number of leaves for annual, sick, and casual? ये अब जो अब मतलब ये उसमें जो हमारे बनी हुई है प्रेजेंटेशंस हम शेयर कर देते हैं उसमें उसमें ये नंबर्स हैं ये कि कितने कितने हैं कि 8 डेज सिक है मैं बता और देता इस हूँ तरह से। आपको। जी जी। नो नो वरीज। एनुअल लीव्स 18 हैं, कैजुअल जो हैं वो 10 हैं, मेडिकल 8 हैं। श्योर श्योर सर श्योर सर। Right. वो हाफिज हमारा Next थोड़ा question कमजोर is, है। अच्छा जी जी। if employees asked to pay gratuity each year for completed year, what is legal position? अच्छा ये अब देखें कि ये कंपनी ने अपनी इंटरनल पॉलिसी बनानी होती है। अच्छा नहीं, वैसे तो शहजाद साहब, जी जी साहब मैं एक्चुअली इफ यू लेट मी कंप्लीट सर मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ अगर सर प्लीज अगर प्लीज। शाह साहब इजाजत दें। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये किया कि जिस तरह से अब ग्रेजुटी इज द एंड सर्विस बेनिफिट इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर इसी तरह से पीएफ भी जो है लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लम्स है यूएमटी है उन्होंने अपने इंटरनल जो वर्क रेगुलेशंस हैं जो इंटरनल वर्क पॉलिसी है उसमें जो पीएफ है उसको रखा हुआ है कि आप ड्यूरिंग सर्विस भी आप क्लेम कर लेंगे अगर आप शो कराते हैं। ये एक मेथड होता है कि आपको ड्यूरिंग सर्विस नीड है। लेट्स सपोज देखिए मैंने पहले भी एक सेशन में भी बात की थी कि ये जो कोड है ये अगर कोई आप एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को लेट्स सपोज आप कहते हैं कि अगर किसी ने 5 ईयर प्लस सर्विस कर ली है तो वो अगर वो ग्रेजुटी फॉर दैट नंबर ऑफ ईयर्स क्लेम करता है और वो रिटर्न में सारा हो जाता है तो वो बिल्कुल दी जा सकती है। इसमें इंटरनल पॉलिसी अगर आप इस तरह से बना लेते हैं तो फिर वो 5 साल की दी जाएगा उसके अगले जो अगला टाइम होगा पीरियड उसका उसके बाद में देखी जाएगी। तो बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज जो है वो देखना है वर्कर्स देखना है मैंडेटरी नहीं है ये। जी शान साहब। सर Okay, let me take the next question. Death benefit of rupees 800,000 is other than financial settlement? That is the question. Death ओवर टू benefit शान। of जी ओवर टू शान साहब। Ishan sir is available. अगर अगर लेट्स सपोज कोई जो क्वेश्चन है इस तरह से जो मिस हो रहा है तो वो ग्रुप ऑब्वियसली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अवेलेबल है उसमें बंदा जो है वो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मैं गलत बात इस तरह कर दूं जो मुझे एग्जैक्टली मैंने अगेन माई साइड इज़ बेसिकली लॉ साइड कोर्ट साइड और जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है वो है। तो ये जो इंडस्ट्रीज के इंटरनल Right. मैटर्स हैं उसमें शान साहब जो है वो मोर प्रो देन मी। Okay. As soon as he joins, uh, हाँ let जी me take the अब next question. EOBI on first day of employment would not be possible as EOBI is submitted after a month. What will be the answer of this? डेफिनेटली ईओबीआई रजिस्ट्रेशन के साथ जैसे एम्प्लॉय अगर शिफ्ट भी करता है इंडस्ट्री तो उसमें जो प्रीवियस नंबर होता है उसको कंटिन्यू किया जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको कंटिन्यू किया जाता है। और इस पे ये एक एक बेसिक जो है वो मैकेनिज्म यही है। तो आफ्टर मंथ जो है वो बिल्कुल जो जो भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। Right. Currently, Provident Fund is on basic and law has made it on gross salary. So in that case, previous balance needs to be revised on gross salary.
देखें, जो जब इस लॉ का गजट नोटिफिकेशन आना है इन्फोर्समेंट का, तब तो वो लाजमी बात है कि देखें, लॉ का कोई भी जो इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। जब जिस डेट से इसका गजट नोटिफिकेशन आएगा उससे ऑनवर्ड जो है वो इसको अप्लाई किया जाएगा। और इस और उससे पहले तक जो अभी करंटली जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल बजा है, वो मैनेज भी चीज़ें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो वंस जब इसका गजट नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन का आ जाएगा, फिर आप अपना वो कंपनी को जो जो उसका बैलेंस है वो दोबारा से उसका जो जो फंड्स होंगे या जो मामलात होंगे उनको दोबारा से रीसेटल करेंगे। Okay. In case of trans province companies who have head office in other province and production facility in Punjab, then to whom all these will apply? Like Punjab Labor Code will exist on this? ये अब अगेन जिस तरह से ये अब वही क्वेश्चन है जिसके लिए अब रूल्स इसमें ना, लॉ में ना मल्टीपल जगह पे मेंशन है कि रूल्स में ना कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगी। अभी करंटली तो चूंकि जो ट्रांस प्रोविंशियल या फेडरल है उनके लिए एनआईआरसी है। जो एनआईआरसी है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, जिस तरह से अभी करंटली चल रहा है। फर्क ये है कि इस कोड में लिख दिया कि एनी एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इन प्रोविंस पंजाब। तो लाइक ये कि क्वेश्चन अब देखें यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कोई किसी का जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री है वो पंजाब में है, उसका हेड ऑफिस अगर इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो उस सूरत में कोड तो ये कहता है कि ये अप्लाई होगा। लेकिन ये फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि एनआईआरसी की भी जुरिस्डिक्शन बन रही है और लेबर कोड कोड भी उसको कवर कर रहा है। तो ये फिर अब रूल्स में ही क्लियर होगा क्वेश्चन, करंटली इट्स नॉट दैट क्लियर। Okay. Next question is trainee students of a chartered accountant firm, mentioned as chartered firm, which is I think it is chartered accountant firm, are covered in the definition of a worker or not? Like trainee students are covered in the definition of a worker or not? ये अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो वो इंटर्नीज में तो आ सकते हैं। चूंकि चूंकि नेचर ऑफ यही एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, अगर तो वो स्टूडेंट्स हैं तो वो इंटर्नीज में कवर होंगे ज़रूर। अब जहाँ तक बात है सीएस की, अब सीएस का जो सिनेरियो जहाँ तक मुझे बीइंग ले मैन, मैं तो जितना मैंने सुना है या जाना है, ये तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसमें एक कुछ इनिशियल कोर्सेज करने के बाद एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती होती हैं। साथ साथ लोग कोर्सेज ले रहे होते हैं ऑनवर्ड आगे से, और फिर कंप्लीट करते करते एक सर्टन टाइम पीरियड भी गुजर गया होता है। तो सीएस के सिनेरियो में अगेन वही आ जाएगा कि अगर तो वो स्टूडेंट इंडस्ट्री एज ए स्टूडेंट उसको हायर करती है तो वो बाउंड ये है कि वो उसको मिनिमम वेज का हाफ देगी। अगर कोई कंपनी उसको 10 लाख भी देती है तो उस कंपनी की मर्जी है, और वो ले रहा है, अच्छी बात है। कोड कोड मैक्सिमम पे बार नहीं करता, मिनिमम पे बार करता है। So we will take it as trainee students are covered under the definition of worker. Is it right? या अगर अगर कंपनी इंडस्ट्री ये चाहती है कि वो उसको एज ए इंटर्नी हायर करे तो उसको इंटर्नी हायर कर लेगी, इंटर्नी हो गया मिनिमम बार। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें इसको रेगुलर वर्कर ही हायर करना है, हमें इसको लॉन्ग टर्म चलाना है, तो आप उसको वर्कर हायर कर लें। आप तो उसको मोर बेनिफिट दे रहे हैं ना, आप उसको एक लोअर लेवल पे नहीं लेके जा रहे, आप उसको अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं। Okay. Next question is this code applicable on chartered accountant firms and consultancy firms? या डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो हमारे लॉ फर्म्स में भी हो गया जो वैसे किसी चीज़ को नहीं मानते, इसको भी देखें अब क्या करते हैं। Okay. Are there any seats reserved for women? How gender discrimination would be detected if no seats are reserved? Because बिल्कुल। employer has their own logics. या ऐसे है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है हमारे, कह लें कि कॉरपोरेट से हटके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वहाँ पे कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे होते हैं कि हम तो खवातीन को हायर ही नहीं करते। अब यही अगेन बैक टू द ऑफिस ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस, कि इतनी सी बात है कि कौन उसको इनिशिएट करता है। लाइक ये कि अगर कोई कंप्लेन करता है, अब बात ये है कि कोई मैटर लेके जाएगा उसमें। अब वो जो ऑफिस इस्टेब्लिश होने जा रहा है उसके पास काफ़ी हद तक सो मोटो पावर्स भी हैं कि उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहाँ पे, अब अगर एक इंडस्ट्री कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है कि हमने फीमेल को हायर नहीं करना,
देखें लॉजिक उनकी अपनी होती है कि वो मामलात होते हैं बेनिफिट्स या लीव्स वगैरह जो इस तरह से, अब देखिए कितना फ़र्क है, मैटरनिटी लीव कितनी ज़्यादा है। तो होता है इंडस्ट्रीज इस लिहाज से भी देखते सोचते हैं अपने एंगल से। लेकिन मेन जो चीज़ है कि ये अब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफिस जो है डिसाइड करेगा कि अगर कोई इंडस्ट्री बिल्कुल ही, अभी तक ये कोटा डिफाइन नहीं है कि इतना परसेंट जो है वो फीमेल आपने रखने जिस तरह इलेक्शन में होता है कि अगर इतनी परसेंट फीमेल वोट नहीं डालेंगी तो वो इलेक्शन काउंट नहीं होगा, तो री इलेक्शन का ऑर्डर हो जाता होता है। तो यहाँ पे ऐसा खैर कोई नहीं है कि 20% लाजमी है फीमेल का होना इंडस्ट्री में। ऐसा कोई कोड के अंडर नहीं है, अगेन रूल में आ जाए तो वेल एंड गुड। Okay, next question is what's the implication of worker profit participation fund and worker welfare fund applicability under this code? या इसमें ये है कि चैप्टर जो, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, पार्ट 5 में जो है वो फंड्स जो पार्टिसिपेशन फंड्स हैं उनकी स्कीम दी गई हैं। उनका चूंकि ये इस कोड में जो है, सॉरी कोड कह रहा हूँ, ये जो स्लाइड्स थी इनमें अभी हमने कुछ इंश्योरेंस के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन जो पार्टिसिपेटरी फंड्स हैं उनका बिल्कुल उनका मैकेनिज्म मौजूद है। वो अब अगेन वही बात है कि मैं एक रास्ता गाइड कर सकता हूँ, बाकी हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल ना तो जा सकते और ना ही मैं इस तरह से सारा कुछ मेरे उस तरह से कह लें कि एक रट्टा लगा हुआ है कि ये इस तरह होगा। तो इतना है कि पार्ट 5 में इसका पार्टिसिपेटरी फंड्स और वो मैकेनिज्म ज़रूर मौजूद है। So I think these are all the main questions that we have already asked. Some are reiterated or answered in our previous slides. So thank you so much for so generously sharing your expertise and for answering our participants' questions with such clarity. You are welcome, On behalf, एंड माय लास्ट जो थिंग, मेरे ख्याल please. से पार्टिसिपेंट अभी भी इंटैक्ट हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं, मैंने वैसे अपना लिंक भी शेयर किया था, अलबत्ता शहजाद ए चौधरी के नाम से ही, सेम नाम से ही आप लिंक्डइन पे हम कनेक्ट हो सकते हैं। और इंशाल्लाह विल रिमेन इन टच, और किसी तरह की भी क्यूरी हो, पर्टिकुलरली लीगल क्यूरी हो, तो आई एम ऑल फॉर इट। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबके लिए और हमारे लिए भी आसानियाँ करे जी। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। Thank you. On behalf of everyone present, we are sincerely grateful as we approach towards the conclusion of our this evening's webinar. I would now like to invite Mr. Ahmed Suleiman Zahid to deliver the closing remarks. Sir Ahmed Suleiman Zahid, Chairman of the CPD Committee, Faisalabad, and partner at Zahid Jamil & Co. Is also a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and Pakistan Institute of Public Finance Accountants. In addition, he serves as a director at the Corporate General Solutions Private Limited in Pakistan and CGS Accounting and Bookkeeping in the UAE, where he oversees strategic initiatives and cross-border services delivery. So please welcome Mr. Ahmed Suleiman Zahid for the closing remarks. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Master of Ceremony, Mr. Atif Ahmed. सबसे मुश्किल काम होता है जी कि क्लोजिंग रिमार्क्स, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और सेशन कंप्लीट हो चुका होता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। ऑन बिहाफ ऑफ NRC of ICAP and CPD committee of ICAP Faisalabad, I am thankful to Zishan Subhan Bandesha Sahab and Advocate Shehzad A. Chaudhary Sahab for their valuable time and sharing their valuable thoughts and their research-based work and their experiences. Definitely टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्री मेंबर्स के लिए भी, जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंडस्ट्री में मौजूद हैं, सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री को, एज वेल एज हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो कि कंसल्टिंग में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका इस टॉपिक से जो रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स ज़्यादा रिलेट करते हैं। दे कैन गाइड देयर HR टीम। नॉर्मली CFOs का जो रोल है वो डेफिनेटली दे सर्व एज COO or CEO of an entity. They have to look after all the areas other than finance and accounting, like marketing, like HR, like production, like IT. So this specific topic related to HR is very important for our professional accountants serving as CEO, CFO or COO or CEO. Also, I'm thankful to NRC leadership, Chairman NRC, Mr. Anil Peter, and CPD convener, Mr. Junaid Subhani, for giving us approval for this valuable, thoughtful webinar.
And I'm also thankful to ICAP team, ICAP IT team, and Ma'am Nazia Akmal for their support always in organizing webinars for our members. और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगा और इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी बहुत ही अच्छे वेबिनार्स अरेंज करते रहेंगे, सेमिनार्स अरेंज करते रहेंगे एनआरसी के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट शहरों में। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू एमओसी मिस्टर आतिफ अहमद। Thank you very much for those gracious and meaningful closing remarks. And with that, we come close of this evening webinar, The Financial Impact of the New Punjab Labour Code 2026. What a truly enriching and insightful session it has been. On behalf of NRC, ICAP and the CPD Committee Faisalabad, allow me to extend our heartfelt gratitude to everyone who made this evening possible. Our sincere thanks to Mr. Nalil Peter for his opening remarks and to Mr. Zishan Ijaz for his valuable keynote address. We are deeply grateful to our industry experts, Mr. Zishan Subhan Bandesha and Advocate Shahzade Chaudhary, for sharing their expertise so generously and for navigating such a complex subject with remarkable clarity. And our thanks to Mr. Ahmed Sultan Zahid for his kind closing remarks. Most importantly, thank you to our participants. Your active presence, your engagement, and your thoughtful questions are what made this session so meaningful. So, with that, I thank you all once again for your time and participation. Thank you. Allah Hafiz.